Thank you all to be here for this important press brief. I'm sorry for the change of timing. Before we start, I would like to introduce the officers that are present here from the three services. We have Major General Surinder Singh Bahal from the Army. Good evening. We have Rear Admiral Dalbir Singh Gujral from the Navy. And we have Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor from Indian Air Force. I'll be requesting the service representatives to present a statement, following which we will also be taking few questions. And in the end, I will request the Air Force to present you all with some evidence. May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. Mobile. Good evening, ladies and gentlemen. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K, which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that 1 Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly, Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. However, they were intercepted by IAF fighter aircraft, which thwarted their plans. Although PAF bombs have fallen in Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any significant damage to our military installations due to a swift IAF response.
Pakistan also stated that no F-16s were used in the operation and no Pakistani plane was downed by Indian Air Force. There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission through the electronic signatures, and thereafter the Pakistan is trying to hide this fact. Also, parts of AMRAAM air-to-air missile, which is carried only on the Pakistan F-16s, was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that one F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison. IAF remains ever vigilant, ready, and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Thank you. Thank you, sir. May I now request Major General Bahal to kindly give the Army statement. Jai Hind and good evening to everyone. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bhimber Gali, Naushera and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. Despite the turn of events, as you all are aware, the Indian Army is committed to maintaining peace and stability in the region and will continue to act against agencies who harbor inimical designs against India and the citizens of our country. Jai Hind. Thank you, sir. Admiral Gujral, please. Good evening, ladies and gentlemen. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. We stand as one with the Army and Air Force to ensure the safety and security of our nation and our citizens. Jai Hind. Thank you, sir. Before we present the evidence in front of you, we would now like to take few questions. Snesh. Sir, the Pakistan Air Force targeted Indian military establishments
would be considered as an act of war by Pakistan, because when we carried out these strikes, we targeted non-military installations. They specifically targeted our military installations. You can take both. Yeah, you can respond. There is no doubt that Pakistan has attempted to target our military installations. We responded swiftly, and because of which their designs to deliver their bomb load at the intended target was thwarted. And that is a task of the Air Force, which it did swiftly and responsibly. Rajiv Ranjan. सर मेरा सवाल सर आपसे है आर्मी से। Okay. जिस तरह के कार्रवाई हुई है जैश के टेररिस्ट कैंप के कार्रवाई हुई है, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस हरकत की है, लगातार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है, तो सीमा पर क्या माने कि तनाव पहले की तरह बरकरार है या बढ़ गया है लेवल? सेना उसको कैसे जवाब दे रही है? देखिए, हमारा लड़ाई जो है काउंटर टेररिज्म, हमारा लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है। तो जब तक पाकिस्तान जो है इसको इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा, हम उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप और जितने भी उसके ट्रेनिंग एरियाज हैं उनको हम टारगेट करने के लिए तैयार हैं। तो हालांकि 14 फरवरी के बाद सीज फायर वायलेशंस काफ़ी बढ़ गई है और पिछले 2 दिनों में कम से कम 35 सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, लेकिन हम जो है उसका उसी हूबहू उसी प्रकार से उसका जवाब दे रहे हैं। Manesh. Sir, this is Manas from PTI. Sir, Pakistan has been pressing for de-escalation. What is the assessment from the Indian military brass? I mean, what is the real situation actually? What is your assessment? Is it going to escalate? Is the situation going to escalate, or you expect that in fact the situation is going to normalize? As we said that your question, as we said that he has targeted our military installations. As I mentioned, he's targeted military targets, and therefore the escalation has actually been done by him. So we are prepared, as I told you, we are ready. If he provokes us any further, we are prepared for any contingency that is given to us. Sir, Poonam Pandey, please. सर, आपने बोला कि सीज फायर वायलेशन बढ़ गया है और अभी भी वहाँ टेररिस्ट कैंप है, तो हम मतलब मिलिट्री क्या उम्मीद करे? क्या पाकिस्तान उन पे कार्रवाई करेगा? क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान लगातार अमन की बात कर रहे हैं, उनका ISPR लगातार अमन की बात कर रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? This question is out of the purview of this press conference. Government of India is taking note of this, and the answer will be given. Ajit Dubey, please. I'll come to you, please. Ajit Dubey. You want to ask the FO? Yes, sir. Yeah. Okay. Sir, my question is that on 26 February, our Mirages crossed over the line of control, entered Pakistani airspace and carried out a major operation against the Jaish camp in Khyber Pakhtunkhwa province. Can you tell us what has been the damage assessment to that camp? And there are talks that there were around 300 terrorists in that camp. Can we give any numbers, any approximate numbers of the terrorists who have been killed there? There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of dead. But has the camp been fully destroyed, sir? Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. Krishna Mohan. जो मैं हूं सर, Yeah. आज के पूरे डेवलपमेंट के So you बाद can come here. अब You can look in front of जो you. लगातार पिछले कुछ दिनों से टेंशन था LOC पर और लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही थी, स्पेकुलेशन थे पूरे देश में, आज के डेवलपमेंट पर क्या आपको लगता है कि टेंशन कम होगा और वैली में टेररिस्ट जो रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं इनमें क्या आपको लगता है कि और तेजी आएगी या वो कम होगी? ये जवाब तो आप पाकिस्तान से पूछिए, क्योंकि अभी भी जो है सीज फायर वायलेशंस एज वी स्पीक जारी है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। Manjit.
सर मेरा सवाल आपसे है, अपनी जो बालाकोट में जो हमने मिराज से जो आतंकी अड्डों को निशाना बनाया उसको लेकर और जो F-16 हमने गिराया, दोनों घटनाओं को लेकर पाकिस्तान ने लगातार कहा कि भारत ने ऐसा कोई हमला नहीं किया, ऐसा कोई अटैक नहीं किया, उसके सबूत नहीं है। उनके कुछ पे लोड ऐसे इलाकों में गिरे जहां पर कोई इंस्टॉलेशन नहीं थे। तो पाकिस्तान के दावे को झूठा साबित करने के लिए, अपनी बात को हम स्थापित करने के लिए हम किस तरह से चीज़ों को आगे रखेंगे, उसके लिए क्या हम सबूत दिखाना चाहेंगे पाकिस्तान को? What you are going to see today as a piece of evidence, which is a part of a AMRAAM air-to-air missile. This is a beyond visual range air-to-air missile, जो कि F-16, पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि AMRAAM मिसाइल लेके उड़ सकता है, और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे AMRAAM मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। दूसरा, एयरफोर्स के पास काफी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज उड़ रहा है या कौन सा जहाज हमारी एयर स्पेस की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर जहाज का, हमारे पास उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करता हुआ हमने उसको पाया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि F-16 इस मिशन में शामिल थे। तो ये एविडेंस है कि और एक AMRAAM का जो पीस हमको मिला है यहाँ से वो। तीसरी बात, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें पाकिस्तान की तरफ से भी, तो आप देखेंगे कि कुछ इंजन वगैरह के पीसेस हैं, कुछ एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं या कुछ ड्रॉप टैंक्स हैं जो वहाँ दिखाए गए हैं, वो MiG-21 के नहीं है। और भारतीय वायुसेना का सिर्फ एक जहाज मिसिंग है, वो एक MiG-21। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कंक्लूसिवली कहा जा सकता है कि F-16 को यूज किया गया। और बालाकोट के मामले में वहां पर जो हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया, उसको कैसे स्थापित करेंगे? हमारे पास, मैंने जैसा कहा पहले कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था, वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप पे कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं दिखाना। Rahul. So my question is, if you could just tell us what was the Pakistani Air Force strike package like, and what was our strike package, and which were the other aeroplanes involved, fighters involved in the Pakistani strikes? See, there are various operational connotations to your questions. So on the operational connotations part, I will not go into specific numbers and types and what happened and what did they do. However, suffice it to say that the Pakistani package comprised of F-16s and JF-17s and perhaps some Mirages, and we had scrambled MiG-21 Bisons, Su-30s and Mirage 2000. So that was the forces that we opposed. So which Mirages were these, sir? These were the upgraded Mirages. No, the Pakistani Mirages, sir, 3, 5? That I can't say. Shreya. Can I step forward? Sir, good evening. Sir, I heard your cryptic statement, just trying to understand what you were saying. What are the forces saying in response to Pakistan sending back Wing Commander Abhinandan without any conditions? Are the forces grateful that it is a gracious gesture? And B, what else are you saying? Are you saying, okay, you're sending him back, but we don't trust you, so our guards are up? Because you're clearly saying there's no de-escalation on the border or as far as our airspace is concerned. As far as the Indian Air Force is concerned, we are happy that our pilot, who had fallen across the line of control and was in the custody of Pakistan, is being released. We are extremely happy to have him back. We want to see him back. Once he reaches back, once he is handed over to us, we will then further make any more comments. Do you see this as a goodwill gesture, sir? We only see it as a gesture which is in consonance with all Geneva Conventions. Just a follow-up. When can we expect two different parts of the mission. Colonel Anand, just Okay, one last question. Nandita, you have the last question. Sir, when can we expect Abhinandan? We are awaiting the evidence, so kindly cooperate. Yes. Sir, what does our intelligence suggest? Because
today under international pressure, have they started taking any steps to dismantle the Jaish-e-Mohammed, or have they still not? What is our intelligence suggesting? We can't share the intelligence with you, Nandita. Thank you. Sir, that will be all. That will be all now. We'll now be presenting the evidence. Thank you very much, sir. Yes. Just hold on. We are showing some. Yes. Please hold on. Please hold on. May I request the Air Force to kindly present the evidence? Yes, you can see Jyotsna. सर आगे आ जाओ। हाँ प्लीज स्टेप अप, सर थोड़ा सा ऐसे स्टेप अप। बस ये पीछे का रास्ता खाली रखिए। साहब रोल साहब फिर 2 मिनट बाद। हाँ उसका जो आमराम ये भी पार्ट दिखा रहे हैं और डबल ए वेट सर नहीं जाएंगे स्टूडियो ले जाने के चक्कर में। अच्छा पीछे सर कैन यू टर्न अराउंड सर बैनर्जी सर कैन यू टर्न अराउंड प्लीज बस सर कैन यू टर्न अराउंड सर टर्न हियर सर प्लीज सर कैन यू टर्न अराउंड सर टर्न दिस साइड चलो चलिए माधव आप माधव बुलाइए ना साहब चलिए सर एक वीडियो में ब्रेक भी लेंगे तो साहब चलिए तो ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप देख रहे थे जिसमें सेना ने पाकिस्तानी हमले के सबूत मीडिया के सामने रखे हैं और इसमें ये ब्रीफ किया गया बाकायदा कि पाकिस्तान ने कब कैसे झूठ बोला। F-16 विमान गिराने का सबूत भी सेना ने यहां मीडिया के सामने रखा। माफ कीजिए, दरअसल ये वो हिस्सा है जिसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि एयर टू एयर मिसाइल सिर्फ F-16 में ही लगाई जा सकती है पाकिस्तान में, और इस बात से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि उसने F-16 का इस्तेमाल नहीं किया, ये दावा झूठा है। और ये जो टुकड़े दिखाए गए दरअसल ये ईस्ट राजौरी जो कि भारत के दायरे के अंदर है, भारत की परिधि के अंदर है, वहां पर ये हिस्से ये टुकड़े पाए गए जिसे सेना ने अपने कब्जे में लिया और इस वक्त मीडिया के कैमरों के सामने ये दिखाए भी जा रहे हैं सबूत के तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि F-16 का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उनके ऑपरेशन में ये विमान उस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे। तो इस झूठ के दावे को यहां पर पूरी तरह से तबाह करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने आप में ये इशारा करती है कि ये कितना झूठा दावा पाकिस्तान की तरफ से था। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया था कि भारतीय सेना के 2 विमान गिराए हैं, वो भी झूठा साबित हुआ, 2 पायलट उनके कब्जे में है, ये दावा भी झूठा साबित किया। तो यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ तौर पर तीनों ही सेना के अंगों के जो अधिकारी शामिल हुए, उन्होंने क्लियर कट सेना की तैयारी से लेकर जो झूठ पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया जा रहा है उस पर तस्वीर रखी सबूत के साथ। लाइव लो ना, फोन है क्या लाइव लो। और ये देखिए ये जो है टुकड़े वो दिखाए जा रहे हैं जिस बात का जिक्र एयरफोर्स के अधिकारी की तरफ से किया भी गया। उन्होंने कहा कि F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया और दरअसल F-16 विमान के अंदर ही एयर टू एयर मिसाइल फिक्स की जा सकती है और इसी मिसाइल के कुछ टुकड़े जो पाए गए वो राजौरी ईस्ट हिस्से में जो कि भारत का हिस्सा है वहां पर पाए गए और इन्हें सेना ने अपने कब्जे में लिया। इस बात का भी उन्होंने इशारा किया कि दरअसल हर जहाज का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जिसे एडवांस सिस्टम पढ़ सकते हैं। भारत के पास वो तकनीक है जो इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को पढ़ सकती है। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मंजीत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और उन्होंने सवाल भी पूछा था इस पूरी गतिविधि को लेकर। मंजीत देखिए सबूत इस वक्त दिखाए जा रहे हैं और ये सबूत एक बार सीधे तौर पर फिर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। F-16 का इस्तेमाल हुआ था।
बिल्कुल मीनाक्षी, और मैंने यही स्पेसिफिक सवाल एयर मार्शल कपूर से पूछा था कि पाकिस्तान इस बात को लगातार झुटला रहा है कि चाहे बालाकोट में हमने जो मिराज लड़ाकू विमानों से आतंकी कैंप को नष्ट किया या F-16 लड़ाकू विमान को गिराया, तो उस पर साफ तौर पर वायुसेना ने दिखाया कि किस तरह से जो F-16 मिसाइल में एक स्पेसिफिक मिसाइल जो लगती है एमरॉल, उस मिसाइल का टुकड़ा गिरा हुआ है। हालांकि जो हमारे MiG-21 लड़ाकू विमान ने F-16 लड़ाकू विमान को गिराया वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिराया, लेकिन उसके जो मिसाइल के टुकड़े हैं और कुछ दूसरे हिस्से हैं वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाए गए। तो उससे और दूसरी तरफ वायुसेना ने ये भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, यानी कि जब F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान से उड़े थे और वो भारतीय यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाना चाहते थे, जैसे कि कल हमने इस खबर को भी ब्रेक किया था कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के निशाने पर भारत के मिलिट्री बेसिस थे। उस पूरी कार्रवाई को वायुसेना के अगर सिस्टम की बात करें तो वो सारी कार्रवाई उसमें रिकॉर्ड है, उनके एयर डिफेंस में रिकॉर्ड है। तो उस लिहाज से वायुसेना ने कहा कि उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं कार्रवाई के दौरान के, और समय पड़ने पर अगर सरकार चाहेगी तो इन सबूतों को और भी तरह से जारी किया जा सकता है। और अगर बात हम बालाकोट ऑपरेशन की करें, जिसमें मिग लड़ाकू विमान के द्वारा जो आतंकी जैश के अड्डे को निशाना बनाया गया, वहां पर जो लोग आतंकी मारे गए, उसको लेकर भी वायुसेना के पास पूरी जो कार्रवाई है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है मंजीत यहाँ पर। और देखिए, सबूतों की एक किश्त भारत पहले ही सौंप चुका है पाकिस्तान को, जिस बात का जिक्र आज खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा कि उन्हें डोजियर मिला है। और ये सबूत की दूसरी किश्त जो इस वक्त मीडिया के सामने भी रखी गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार ये कहा कि F-16 विमानों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था अपनी कार्रवाई में, अपने ऑपरेशन में। लेकिन यहाँ पर जब एयरफोर्स के अधिकारी AVM कपूर सामने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजौरी वेस्ट एरिया में घुसे थे पाकिस्तान के विमान, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना चाहते थे, इस मकसद से दाखिल हुए थे, लेकिन एरियल कॉम्बैट में हमने F-16 को गिराया। हालांकि एक MiG-21 विमान खो गया और पायलट क्योंकि POK में लैंड हो गए तो वहां पर पाकिस्तान के कब्जे में वो आ गए। लेकिन जो गलत जानकारियां पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में फैलाई जा रही हैं, प्रचारित की जा रही हैं, उन्हें यहां पर सबूतों के साथ भारत ने उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मंजीत, कई और अहम सवाल भी पूछे गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और बहुत क्लियर कट आर्मी की तरफ से ये कहा गया कि सेना के तीनों अंग अपनी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हैं। यहां से आगे जो भी होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप जो तय करेगी उसके हिसाब से आगे कदम उठाए जाएंगे। देखिए मीनाक्षी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मकसद ये था कि जो विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़कर ये दिखाने की कोशिश की कि वो शांति दूत है और वो एक तरह से भारत से बढ़त लेने की फिराक में था, उसको एक तरह से नकारा गया सरकार की तरफ से कि हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। तीनों सेनाओं ने साफ किया, इसीलिए तीनों सेनाओं के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सभी को यहाँ पर मौजूद रखा गया था। तीनों ने एक बात को दोहराया कि पाकिस्तान जिस तरह से सरहद पर कार्रवाई कर रहा है उसका जवाब देने के लिए तीनों सेनाएं तैयार हैं। चाहे सेना की बात की जाए, वायुसेना की बात की जाए, वायुसेना ने जिस तरह से अभी तक 2 कार्रवाई में पाकिस्तान को हवाई हमलों में जवाब दिया है, और नौसेना की बात की जाए तो नौसेना भी जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। तो ये एक संदेश पाकिस्तान को साफ तौर पर सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से दिया गया है। मंजीत, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन से वो अहम बिंदु थे जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। May I request the Air Force to kindly present the evidence? Yes, you can see Jyotsna. सर आगे आ जाओ। हाँ, प्लीज स्टेप अप, सर थोड़ा सा ऐसे स्टेप अप। वेट सर नहीं जाएंगे ले जाने के चक्कर में। अच्छा सर, कैन यू टर्न अराउंड सर? बानेजी सर, कैन यू टर्न अराउंड प्लीज? बस सर, कैन यू टर्न अराउंड? सर टर्न हियर। इसमें देखिए ये टुकड़े भी दिखाए गए हैं जो भारतीय हिस्से में, भारतीय सीमा के अंदर गिरे, और F-16 गिराने का जो दावा भारत का था उसको लेकर यहां पर सबूत भी पेश कर दिए पाकिस्तान, क्योंकि लगातार इस बात पर झूठ बोल रहा था कि F-16 का इस्तेमाल उसने नहीं किया। लेकिन
ये टेक्नोलॉजी को लेकर क्लियर कट भारत की तरफ से कहा गया है कि जो जहाज का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है उसे पढ़ा जा सकता है और ऐसी तकनीक हमारे पास है जिससे ये जाहिर होता है कि F-16 का इस्तेमाल हुआ था। इसलिए पाकिस्तान का ये कहना कि F-16 विमानों का इस्तेमाल उसने इस ऑपरेशन में नहीं किया, ये गलत है, झूठा है। और इसी को लेकर ये सबूत भी दिखाए गए और साथ ही अधिकारियों का ये भी कहना था कि सबूत हमारे पास हैं जो सरकार को सौंप दिए गए हैं। अभी सरकार पर निर्भर करता है कि वो इन सबूतों के साथ किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि पहले ही एक डॉजियर पाकिस्तान को पुलवामा हमले को लेकर सौंपा जा चुका है। What you are going to see today as a piece of evidence, which is a part of a AMRAAM air-to-air missile. This is a beyond visual range air-to-air missile, जो कि F-16 पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि AMRAAM मिसाइल लेके उड़ सकता है और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे AMRAAM मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। दूसरा, एयरफोर्स के पास काफी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज उड़ रहा है या कौन सा जहाज हमारी एयर स्पेस की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर जहाज का, हमारे पास उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करता हुआ हमने उसको पाया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि F-16 इस मिशन में शामिल थे। तो क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपने सुना। मंजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मंजीत ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा था कि F-16 विमानों का जो दावा कर रहा है पाकिस्तान, उसे लेकर हमारे पास क्या सबूत हैं, और इस पर स्पष्ट शब्दों में ये जानकारी सामने आई कि F-16 का इस्तेमाल हुआ था। मंजीत, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े टेकअवेज की बात की जाए तो कौन सी बड़ी 3 बातें रही? मंजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? सबसे बड़ी बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पाकिस्तान लगातार झुटलाने की जी बोलिए मंजीत। जो पाकिस्तान झुटलाने की कोशिश कर रहा था लगातार, कल पूरे दिन पाकिस्तान ने जिस तरह से और आज भी कहा कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 लड़ाकू विमान नहीं गिरा है, उसको लेकर सीधे तौर पर सबूत यहां पर दिखाए गए और सेना मुख्यालय में लाकर उन सबूतों को दिखाया गया। और दूसरी बड़ी बात, तीनों सेनाओं के अंगों को, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को यहां पर मीडिया के सामने लाकर जो सामने खड़ा किया गया, सवालों के उन्होंने जवाब दिए। उससे सीधा संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि सरकार पाकिस्तान को लेकर जो अभी तक की जो कार्रवाई रही है, पाकिस्तान का जो जवाबी हमला रहा है, उसको जिस तरह से नाकाम किया गया और खासतौर से पाकिस्तान जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। कल भी पाकिस्तान ने अपने F-16 अपने लड़ाकू विमानों की जो कार्रवाई की, उसमें पाकिस्तान ने कहा कि उसका इरादा भारत को किसी तरह से सैन्य नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसीलिए उसने ऐसे इलाकों में बम ड्रॉप किए जहां पर सिविल आबादी नहीं हो। जबकि वायुसेना के पास, सेनाओं के पास इस बात के पुख्ता इनपुट हैं कि इनका टारगेट, और जैसा हमने कल भी इस बात की जानकारी थी कि सेना के पास इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान अलग अलग एयर बेसेस से उड़े थे, उनका सीधा टारगेट कश्मीर में सरहद से लगे जो भारतीय सेना के बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, खासतौर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, ऑयल डिपो है, उनको निशाना बनाना था। तो एक बात ये इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हुई कि पाकिस्तान की मंशा क्या थी और पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, F-16 को लेकर उसके जो मलबे के जो टुकड़े दिखाए गए, उससे इस बात को साबित किया गया। और तीसरी बात, आपको एक सेकंड यहां पर रोकूं क्योंकि बहुत अहम तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सीसीएस की बैठक से जुड़ी ये तस्वीर, क्योंकि ये अहम बैठक भी चल रही थी जिसको लेकर हालातों पर चर्चा होनी थी, क्योंकि अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उसके बाद अगला कदम क्या होगा भारत का, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश हो रही है तो दूसरी तरफ विंग कमांडर अभिनंदन कल वापस लौटेंगे, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ बोले गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सेना के तीनों अधिकारियों ने की उसमें जाहिर हुआ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये जो अहम बैठक चल रही है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे तय करना है कि अभी क्या परिस्थिति वहां पर है और इसके बाद अब यहां से आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा। मंजीत, लेकिन एक बात यहां पर बिल्कुल जो साफ होती है,
पाकिस्तान की तरफ से एक चैनल से बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, भारत को उससे भी जूझना है, उसका भी सामना करना है। और इसी के मद्देनजर ये सबूत भी दिखाए गए। अब यहां से आगे आप सूरत हाल को किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल मौजूदा हालात में भारत कहीं भी इस तरह का संदेश नहीं देना चाहता कि पाकिस्तान जिस तरह से एक दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के साथ शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान ने जिस तरह से अपनी संसद में ये कहा कि हम जो बंधक पायलट है उसको छोड़ने जा रहे हैं बिना किसी शर्त के, तो दूसरी तरफ भारत की अगर बात की जाए तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिस तरह से सीसीएस की बैठक हो रही है तमाम, और जो सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर एनएसए डोभाल और तमाम लोगों ने राजनयिक मोर्चे पर पूरा दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाला कि पाकिस्तान सिर्फ बातचीत का बहाना, बातचीत के मोल भाव से भारत को कहीं में दबाव में लाने की कोशिश नहीं कर सकता। और आज की जो रिहाई हुई है मीनाक्षी, वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर जो राजनयिक दबाव, सामरिक दबाव जो अब तक का बना हुआ है उसकी वजह से हुई। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि ये एक शुरुआत है, तीनों सेनाओं के विकल्प खुले हुए हैं, और वही संदेश आज यहां पर देने की कोशिश की गई कि अभिनंदन की जो रिहाई है पायलट अभिनंदन की, वो किसी तरह का भारत मोल भाव के तहत नहीं हुई है। एनडीए की तरफ से मंजीत, देखिए ये जानकारी दोपहर के समय भी सामने आ गई थी कि किसी भी कीमत पर कोई डील या नेगोशिएशन विंग कमांडर के नाम पर नहीं होगी। पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी। एक बार फिर सुनवाते अपने दर्शकों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सबूत दिखाए गए उस दौरान अधिकारियों ने क्या कहा। Today, as a piece of evidence, which is a part of a AMRAAM air-to-air missile, this is a beyond visual range air-to-air missile, जो कि F-16, पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि AMRAAM मिसाइल लेके उड़ सकता है, और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे AMRAAM मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। दूसरा, एयरफोर्स के पास काफी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज उड़ रहा है या कौन सा जहाज हमारी एयर स्पेस की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर जहाज का, हमारे पास उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करता हुआ हमने उसको पाया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि F-16 इस मिशन में शामिल थे। तो देखिए, हर जहाज का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है और उस सिग्नेचर को पढ़ने की तकनीक हमारे पास है, जिससे ये जाहिर होता है कि F-16 का इस्तेमाल हुआ। और राजौरी ईस्ट इलाके में इसके टुकड़े भी मिले जो F-16 में ही इस्तेमाल होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान इस बात पर झूठ बोल रहा है कि F-16 का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया भारत ने और आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसे लेकर भी सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो साफ तौर पर अधिकारियों ने कहा कि उसके हमारे पास जो सबूत हैं वो अपने आप में सक्षम है ये बताने के लिए कि जो टारगेट लेकर हम चले थे उसमें हम कामयाब हुए। ये सबूत सरकार को सौंपे जाएंगे और उसके बाद सरकार जो इस पर फैसला लेना चाहे वो आगे ले सकती है। और इस दौरान टुकड़े जरूर दिखाए गए जो भारत के हिस्से में ही गिरे थे और उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया गया। मंजीत, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो और अहम सवाल पूछा गया वो पायलट को लेकर था, जिस पर सीधे तौर पर अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि ये किसी भी तरह के दबाव का काम ना तो पहले कर रहा था भारत पर, ना अब करेगा, क्योंकि पायलट की वापसी जिनेवा संधि के तहत यूं भी पाकिस्तान को करनी ही थी। लीगली वो पाकिस्तान के ऊपर एक बाउंडेशन थी, एक उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। बिल्कुल मीनाक्षी, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये सवाल पूछा गया और वायुसेना ने इसको साफ किया कि वो चाहते हैं कि उनका जो पायलट है वो सुरक्षित वापस पहुंचे। जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा कि कल उसको बाघा बॉर्डर के जरिए भारत को सौंपा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो संदेश, जो कोशिश की गई, जो झूठ दिखाने की कोशिश की जा रही है लगातार, उसको भी यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आज के इस तीनों जो सेनाओं के अंगों को यहाँ पर वरिष्ठ
वरिष्ठ अधिकारियों को मीडिया के सामने लाया गया, उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ बातों को सामने रखा, उसमें कहीं भी ये दर्शाने की कोशिश नहीं हुई कि जो विंग कमांडर अभिनंदन हैं, जिनको पाकिस्तान ने बंधक बनाया हुआ है, और उससे पहले भी लगातार पाकिस्तान ने झूठ बोला, 2 MiG-21 लड़ाकू विमानों को गिराने की बात कही, 2 पायलटों के कब्जे में होने की बात कही, और बाद में फिर उस बात से वो पलट गए। तो ये बात साफ है कि सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर कहीं पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत या पाकिस्तान के साथ कोई मोल भाव की बात नहीं है। ये सीधे तौर पर सरकार का, सेनाओं का जो राजनयिक और सामरिक दबाव रहा है अब तक का, और अभी भी सरकार की तरफ से थोड़ी देर पहले हमने रिहाई के वक्त भी ये सरकार के सूत्रों से इस खबर को मीनाक्षी बताया था कि प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर तमाम NSAG डोभाल और सुषमा स्वराज से लेकर तमाम जो सरकार से जुड़े बड़े लोग हैं, उनके स्तर पर जो राजनीतिक दबाव अमेरिका के साथ मिलकर या बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलकर जो दबाव बनाया गया, वो उस रणनीति का दबाव पाकिस्तान पर रहा। और साथ ही पाकिस्तान को अभी भी पाकिस्तान के अंदर इस बात का डर जरूर बैठा हुआ है कि भारत अभी भी जो सैन्य कार्रवाई है, चाहे हवाई हमलों की बात की जाए, जमीन पर कार्रवाई की बात की जाए या नौसेना के मोर्चे पर कार्रवाई की बात की जाए, उसका विकल्प लगातार खुला हुआ है। तो ये एक तरह से ये बीच का रास्ता, रिहाई जो की है पाकिस्तान ने, उसी रास्ते पर आगे बढ़कर की है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि इस वक्त CCS की एक अहम बैठक चल रही है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और वहां से क्या निकल कर आता है नजरें इस बात पर भी रहेंगी। लेकिन इसी बीच सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जाहिर हो गया कि पाकिस्तान के झूठ को लेकर जो सबूत सेना के पास हैं वो अपने आप में बहुत अहम है, और इसके आधार पर जो पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश भी हो रही है, वो पेशकश अपने आप में कितनी ईमानदार है, ये सवालों के घेरे में है। मंजीत, जिस दौरान मेजर जनरल सुरेंद्र बहल बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि सेना की तैयारी ग्राउंड पर किस तरह की है, और जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान अगर बातचीत की पेशकश भी कर रहा है तो इस पर किस तरह, इसको क्या वाकई हकीकत में इस पर अभी सोचा भी जा सकता है, परिस्थितियां वैसी हैं भी, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि 2 हफ्ते में 35 बार सीज फायर उल्लंघन हो चुका है और अभी तक भी वो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। तो इस सूरत में बातचीत कैसे मुमकिन है? ये चीजें मीनाक्षी पाकिस्तान को तय करनी है कि सीज फायर वायलेशन और संघर्ष विराम और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, और आज आपको मालूम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 5 बजे के लिए रखी गई थी मीनाक्षी, उसके बाद सरकार में मंथन के बाद और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से संसद में इमरान खान ने रिहाई की बात करी तो चीजें बदली। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 7 बजे रखा गया और पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूत के साथ तीनों सेनाओं के अंगों ने अलग अलग बात कही। सेना ने अपनी जानकारी दी, जो सेना के मेजर जनरल हैं उन्होंने जिस तरह से सीज फायर उल्लंघन की बात, चीजों को सामने रखा, और ये बात किसी छुपी नहीं है। पिछले खासतौर से अगर हफ्ते भर का समय अगर मीनाक्षी हम देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर खासतौर से नौशेरा, रजौरी और दूसरे जो कश्मीर के इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान ने हर संभव जितनी ज्यादा कार्रवाई हो सकती है, पिछले 1-1.5 महीने से की कार्रवाई को देखें तो बहुत ज्यादा सीज फायर उल्लंघन किया है, बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया है। भारत ने भी उसी तरह से उसका मुकाबला किया है, और वायुसेना की एक जो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हुई है उसमें पाकिस्तान को इस बात का आभास हो चुका है कि ये कार्रवाई एक शुरुआत भर है। इससे बड़ी कार्रवाई भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना उसके खिलाफ कर सकती हैं, तो वो दबाव पाकिस्तान के ऊपर निश्चित तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, और अब जो सबूत दिखाए गए हैं, दबाव इसके बाद और बढ़ेगा, लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो शांति की पेशकश हो रही है, जो बातचीत की पेशकश हो रही है, उस पर अब आगे क्या रिस्पांस रहता है, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम जो आज के दिन में आगे बढ़े हैं, सामने आए हैं, उसकी चर्चा CCS की बैठक में भी जरूर हुई होगी। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बैठक खत्म हो चुकी है। हिमांशु, कोई जानकारी अगर निकलकर सामने आ रही हो कि क्या डिस्कस हुआ या अभी किस तरह की रणनीति पर विचार हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये CCS की बैठक नहीं थी मीनाक्षी, ये हाई लेवल एक मीटिंग थी जिसके अंदर तीनों सर्विस चीफ थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PMO निपेंद्र मिश्रा और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा थे, साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी थे, तमाम बड़े ऑफिसर्स थे, और उनके साथ चर्चा की गई कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से विंग कमांडर को कल रिलीज़ करने की बात तो कही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और किस तरीके से पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जाए डिप्लोमेटिक स्तर पर कि जो आतंकवाद
आतंकवाद है उसके ऊपर वो लगाम लगाए अपनी धरती के अंदर, और भारत में जो है उनके टेररिस्ट जो ग्रुप हैं वो आकर आतंकी घटनाओं को अंजाम ना दे, इसके लिए आगे की रणनीति बनाएगी कि पाकिस्तान पर किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ आज जो है आर्मी और एयरफोर्स दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ बोल रहा है, वो तमाम तथ्य उन्होंने पेश किए। तो कहीं ना कहीं भारत कह सकते हैं कि विदेशी कूटनीति के सहारे जो है वो पाकिस्तान पे प्रेशर बना रहा है, और दूसरी तरफ मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को उसको बताना चाहता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा, और इसीलिए हर तरीके से जो है और हर तरह से पाकिस्तान को दबाव बनाया जा रहा है कि वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पहल करे, और उससे पहले कोई बातचीत भारत की तरफ से नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी कि अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के घुटने टिकवाने की पूरी कोशिश जो है वो भारत की है, और लगभग जिस तरीके से विंग कमांडर को रिलीज करने की बात पाकिस्तान ने की है तो ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, और उनकी तरफ से, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से 2 बार ये कहा गया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, उन्होंने आज ये भी कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की और बात नहीं हो पाई। तो मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कॉन्क्रीट चीजें निकल कर नहीं आएंगी, और कॉन्क्रीट तभी आएगा जब वो आतंकवाद को लेकर बातचीत करने की पहल करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, देखिए ये बात यहाँ पर एक संकेत में ही समझ लें, लेकिन क्लियर समझ में आती है कि बातचीत अगर होगी तो भारत की अपनी शर्तों के आधार पर होगी, और उसी स्टैंड पर सरकार भी आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान बेशक बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उन हालात के मद्देनजर हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। मंजीत नेगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि सेना के तीनों अंगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबूत सामने रखे जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। मंजीत, मैं चाहती हूं कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार सिलसिलेवार तरीके से आप समझाएं कि सबूत क्या रखे गए, इन सबूतों का क्या मतलब है और किस तरह से ये पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। मीनाक्षी, जो सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान के खिलाफ रखा गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें एमरॉन मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और अपनी तरह की अलग मिसाइल है, सिर्फ F-16 में ही फिट होती है और उसी से वो हवा में मार करती है। तो ये एक खास मिसाइल है जिसमें सिर्फ F-16 में लग सकती है, और जो रक्षा जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं। तो उस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान झूठ नहीं बोल सकता कि ये अगर उस मिसाइल का टुकड़ा भारत में गिरा है, भारत की सरहद में गिरा है, तो पाकिस्तान की तरफ से वो F-16 मिसाइल भारत में दाखिल हुई है। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात एयर वाइस मार्शल ने कही है, उनका ये कहना था कि ये पहले से जानकारी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है पूरे उड़ानों के, कि किस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस से, सरगोदा से, लाहौर से, उसके आसपास के जो एयरबेसेस हैं वहां से कितने बजे, ये खबर हमने कल भी बताई थी कि सेनाओं के पास इस बात की पूरी जानकारी है कि 10:10 पर अगर सरगोदा से वो विमान उड़ा है, उसके टारगेट पर नौशेरा के आसपास के जो आर्मी ब्रिगेड थी, आर्मी के ऑयल डिपो थे, बड़े इंस्टॉलेशन थे। पाकिस्तान ने कल इस बात को लेकर झूठ बोला कि पाकिस्तान ने जो हवाई हमला किया है उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसके टारगेट नहीं थे, सिविल इंस्टॉलेशन नहीं थे, उसने सिर्फ कुछ जंगल के इलाकों में उन बमों को गिराने की कोशिश की। तो ये बात वायुसेना ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर पाकिस्तान के झूठ को सामने रखा। इसके अलावा खुद मैंने इस सवाल को पूछा कि पाकिस्तान लगातार जो मिराज लड़ाकू विमानों ने जैश के आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है, उसको लेकर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि भारत ने कुछ जंगल के इलाकों में पेड़ लोड गिराया है, उसको लेकर वायुसेना के पास पूरे सबूत मौजूद हैं। और यहाँ पर मीनाक्षी, खास बात यह है कि जो मिराज लड़ाकू विमानों ने जैश के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि मिराज लड़ाकू विमानों से जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइलें 1000 किलोग्राम की जो मिसाइल 5 से 6 मिसाइलें उस अड्डे पर गिरी हैं, उनकी सारी रिकॉर्डिंग उस मिराज के पास, एवेक्स सिस्टम के पास मौजूद है। और ये बात यहां पर भी आज कही गई वायुसेना की तरफ से, तीनों सेनाओं की तरफ से, कि जब सरकार चाहेगी, देश का राजनीतिक नेतृत्व जब चाहेगा, उन सबूतों को देश के सामने और पाकिस्तान को दिखा दिया जाएगा। आज भर के लिए ये सबूत पाकिस्तान के लिए काफी हैं। F-16 को लेकर पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा है, उसको लेकर ये सबूत सीधे तौर पर देश, दुनिया को और पाकिस्तान को दिखा दिए गए हैं, जिसको मुझे अब लगता है कि अब पाकिस्तान झुटला
झुटला नहीं सकता। हालांकि हम जिस तरह से पहले बोल रहे थे कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर उसको झुटलाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर तथ्यों के साथ वायुसेना के अधिकारी ने जिस तरह से रखा है, देखिए मुझे मंजीत, लगता है यही कि यहाँ पर सवाल बड़ा लगातार बना हुआ है कि एक चैनल से आप बातचीत की पेशकश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के आला अधिकारी इतने बड़े झूठ दुनिया के सामने रखते हैं जिसे एक सेकंड में सबूत के आधार पर खारिज कर दिया भारतीय सेना ने, और जो सबूत सामने रखे वो अपने आप में झूठ की पूरी कहानी बयां करते हैं।